So in today's lecture, we'll be gonna studying about the English composition part, and as you know that it is the part of or the section of the English paper 2 of the AQUEB. So ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है आप लोगों को स्टूडेंट्स को दैट हाउ टू स्टार्ट राइटिंग द कॉम्पोजिशन. आपने क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड कर लिया, आपने उसको समझ भी लिया, बट हाउ यू कैन स्टार्ट द इंट्रो पैराग्राफ और हाउ यू कैन मेक द body, how you can compose the body or the main structure, and then how you can jump to the conclusion. So these all are the main points that you want to analyze them all together in order to complete the task. Okay, so let's move on to this question that I've taken out from the past paper of AQEB. The question is, write a composition about 200 words on any one of the options A, B or C. Remember to compose the final draft. Here final draft means the conclusion. Remember to compose the conclusion in complete sentences. So what the examiner is going to expect from you. Okay, examiner क्या expect करना चाहता है आपसे. Examiner has given you the options, have the following options. Either means you can opt this one, or you can opt this one, or you can opt this one. Okay, here you can see, make your notes below. In this given box that I've underlined or I've made over here, or the space that you have been given right now, here you have to compose your, here you have to make your notes. Write your final draft on pages 9 and 10. फाइनल ड्राफ्ट्स आपका होना चाहिए, कंक्लूजन आपकी होनी चाहिए पेजेस 9 और 10 में. एंड गिवन दिस बॉक्स जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें आपको अपना नोट्स या फिर अनदर थिंग दैट इज़ वेरी वेरी यूजुअल, ब्रेन स्टॉर्मिंग. Brainstorming. Okay, brainstorming means to make some short notes, and with the help of those notes you can write your composition. Now move करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर. नंबर 1 A क्वेश्चन वी हैव, ईच वन ऑफ अस कमिट्स मिस्टेक्स. हम में से हर कोई मिस्टेक्स करता है. वाइल मोस्ट ऑफ दैम कैन बी इग्नोर्ड, कुछ मिस्टेक्स हमारे इग्नोर हो सकती हैं. देयर इज़ एटलीस्ट वन रिग्रेटेबल इवेंट, यहाँ पे कोई ऐसा रिग्रेटेबल इवेंट होता है जिसमें हमें पछतावा होता है. इन ईच ऑफ आवर लिव्स दैट fills us with such remorse and regret. Remorse and regret का मतलब एक बहुत ही ज़्यादा dissuade means मायूस, और एक बहुत ही ज़्यादा पछतावा का हमें सिनेरियो मिल जाता है हमें. That we wish that we could turn back time, हम चाहते हैं कि हम वापस उस वक्त में चले जाएं और सब कुछ बदल दें, and change what happened. Now over here the examiner has given you the following question, and after you understand this whole topic, what he or she is expecting from you to write about any such event in your life. You have to write any one of the event from your life by taking an example of it which you want to change, जो आप चाहते हो कि मैं अपने पास्ट में जाके उसको चेंज कर सकूं. बट although it is not possible कि मैं उसको जाके चेंज कर सकूं, मगर मुझे चाहिए कि मैं, काश मेरी ऐसी विश होती तो वो विश मेरी कौन से इवेंट में होती. Your answer must include. Now this is the main point. Your answer आपका किन किन बेसिस पर होना चाहिए. Those all bases are given over here. Details of the situation. Your situation must have details, not only one or two lines and you just conclude it over there. Your answer, your paragraph should be detailed about that event. Your action / reaction to it. If that event happened to you and उसमें आपको जो रिएक्शन था आपका, उसमें जो आपका एक्शन था कि आपको जब उस इवेंट का अचानक से पता चला या आपको उस इवेंट की अचानक से एक सीन आपको नज़र आया, तो आपका उस वक्त क्या रिएक्शन था. यानी कि डिटेल्स भी होनी चाहिए, आपका रिएक्शन भी होना चाहिए. इन वॉट वेज शुड यू चेंज द इवेंट, ऐसे कौन से मेथड्स हैं जो आप पास्ट में जाकर इवेंट्स को चेंज कर सकते हो. नाउ अब मैंने आपको बताया था कि आपके AQUEB में 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं. नंबर 1 यू कैन से नैरेटिव, वेयर यू हैव टू टेल अ स्टोरी. दिस इज़ समवॉट अ टाइप ऑफ नैरेटिव क्वेश्चन. Number 2 you have argumentative.
in which you have to argument with the examiner or the given question. Number 3 we have persuasive. Persuasive means you have to persuade or you have to agree someone on your, आपको अपनी बात पर अगले को एग्री करना होगा, ओके या फिर एक और अगर मैं इंक्लूड कर दूँ तो यू कैन सी लाइक स्टैटिक्स क्वेश्चंस, मगर ये बहुत कम होते हैं, इसमें आपको अपने व्यूज़ अपने ओपिनियंस देने होते हैं, वो भी एक अलग तरीके के क्वेश्चन। सो दिस पार्ट ए पार्ट इज़ द स्टैटिक्स क्वेश्चन, सॉरी नैरेटिव क्वेश्चन। तो इसमें आपको एक स्टोरी बतानी है और स्टोरी के आपको उसके बिहाफ पर डिटेल्स, एक्शन और वेज बताने हैं। तो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन की टाइप आइडेंटिफाई करनी है अमंग दोज दैट आई हैव हाइलाइटेड राइट नाउ ओवर हियर इन द बॉक्स, नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव, परसुएसिव, स्टैटिक्स। नाउ यू हैव यू नो दैट इट इज़ द सॉर्ट ऑफ नैरेटिव क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी ट्रिक ये है कि आपको किस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, सॉरी मैं दोबारा से उसको ले आता हूँ, कि आपको नैरेटिव में ज़्यादा ग्रिप हासिल है, आपको आर्गुमेंटेटिव में ज़्यादा ग्रिप हासिल है, आपको परसुएसिव में ज़्यादा हासिल है, तो स्टैटिक्स में ज़्यादा हासिल है। मैं अगर अपनी टिप बताऊं और जो मोस्ट ऑफ द पोजीशन होल्डर्स अप्लाई करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड ऑल द पार्ट्स, ए बी और सी तीनों को हम गौर से समझ के पढ़ते हैं। जो तीनों में से हमारे स्टैंडर्ड हमारी ग्रिप के हासिल हिसाबिक होता है, जैसे कि अगर मुझे नैरेटिव मिल गया तो मैं नैरेटिव में अच्छा हूँ, मुझे पता है, तो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू ऑप्ट द ऑप्शन ए, बिकॉज ऑप्शन ए इज़ डेफिनेटली बिकॉज ऑफ माई थिंकिंग एंड माई knowledge and my all the aspects that are being covered in this question। तो मैं उस क्वेश्चन के हिसाब से चलूँगा जो मुझे ज़्यादा अच्छा आता हो। सो ओवर हियर आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट आई एम एक्सपर्ट इन द नैरेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जो अब आपको करना ये है, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग की हेडिंग डालनी है ओवर हियर इन दिस पेज, जहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आपको उसमें फाइनल नोट्स अपने ड्राफ्ट करने हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं एक बॉक्स बनाऊँगा, उस बॉक्स में मैं लिखूँगा एक्शंस, मेरे एक्शंस क्या होंगे। एक बॉक्स में इसके साथ बनाऊँगा, उसमें मैं लिखूँगा डिटेल्स क्या होंगी मेरी, और एक बॉक्स में इसके साथ बनाऊँगा वेज क्या होंगे मेरे मेथड्स। तो अब मैं एनालाइज करके, ऐसे कि मैं अब तक एक रिग्रेटफुल इवेंट बताऊँ, दैट माई रिग्रेटफुल इवेंट वॉज, जिसको मैं चाहता हूँ कि मैं चेंज कर सकूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई भी नहीं है, बट लेट्स सपोज मैं किसी का ले लेता हूँ, मैं किसी दूसरे इंसान का जो मुझे पता हो, अपने किसी फ्रेंड का, मैं उसका ले लेता हूँ। सो ही विश, डिटेल्स क्या होंगी उसकी, मैं कुछ पॉइंट्स कंसिडर कर लूँगा। द डिटेल्स यानी कि उसकी इवेंट का मतलब का, उसका जो मीनिंग होगा, उस डेफिनेशन जो होगी इस इवेंट की, दैट डेफिनेशन मस्ट बी एक्सीडेंट। फॉर एग्जांपल एक एक्सीडेंट उसने देखा अपनी आंखों के सामने या उसके साथ हुआ, यानी कि उसका मीनिंग था एक्सीडेंट, उसका जो मेन इम्पॉर्टेंट हेडिंग थी एक्सीडेंट। एक्सीडेंट किसका था, उसके फ्रेंड का था, ये डिटेल ऐड कर दी उसने। हुआ क्या था, हिज फ्रेंड डाइड ऑन दैट एक्सीडेंट। तो अब ये डिटेल्स तो हो गई इसके ऊपर, अब मैं इन एक्सीडेंट, फ्रेंड और डाइट के ऊपर डिटेल्स करूँगा अपनी। नंबर 2, एक्शंस क्या होने चाहेंगे मेरे, आई वॉज शिवरिंग, मैं काँप उठा, और आई वॉज शिवर्ड अगर मैं पास्ट फॉर्म में लिखूँ, सो आई वॉज शिवर्ड, आई वॉज क्राइंग, एक्शंस मेरे थे, आई वॉज हेल्पलेस इज ऑल्सो समवॉट एक्शन और रिएक्शन। वेज में मैं अब जो मैं एक्शन लिखूँगा वो मैं इन्हीं के ऊपर लिखूँगा। शिवरिंग मैंने कैसे की, क्राई मैं रोया कैसे, मैं हेल्पलेस कैसे महसूस किया वो। अब वेज कौन से जिसमें मैं उनको चेंज कर सकूँ जाकर, आई अवॉइड गोइंग फ्रॉम द होम, अवॉइड गोइंग आउट ऑफ द होम, मैं चाहता तो मैं घर से बाहर ना निकलता, सॉरी हाँ मैं चाहता, या फिर मेरा फ्रेंड चाहता जिसका एक्सीडेंट हुआ था कि वो अवॉइड गोइंग आउट ऑफ द होम, वो घर से निकलना अवॉइड करता, वेज इसमें वो बच सकता था। ही कैन यूज़ अगर उसका बाइक पे एक्सीडेंट हुआ था तो ही कैन यूज़ कार, जिसमें वो वेज अपनी मेथड से बचा देता अपने आप को। नंबर थर्ड आप लिख लें वेज में कि वेज में आप एक थर्ड लिख सकते हैं आई गेस। सो क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको मोस्टली 5 मिनट्स देने होते हैं, 5 मिनट्स देने होते हैं आपको इसमें। हालांकि कंपोजिशन पार्ट में आपको ओवरऑल 45 मिनट्स देने होते हैं, वेट अ मिनट, ओवरऑल 45 मिनट्स आपको देने होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट में, सॉरी कंपोजिशन पार्ट में। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको 5 मिनट्स तो देने पड़ते हैं, बाकी के 40 मिनट 40 मिनट्स आपको कंपोजिशन पर ही देने पड़ते हैं।
सो एक और वेज में मैं लिख सकता हूँ कि ही कैन बी समवन, ही कैन बी विद समवन। वो किसी और के साथ हो सकता था, बजाय इसके कि वो अकेले जाता तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता। अगर वो किसी और के साथ होता तो वो बच सकता था। ही कैन बी विद समवन, वो किसी और के साथ हो सकता था जो अच्छा ड्राइवर हो, कार का या बाइक का, जो उसके एक्सीडेंट को बचा सकता था। अब ये तो मैंने अपनी तरफ से बताया ना, एक मे बी ये इतना अच्छा ना हो जितना आप सोच सको उतना अच्छा। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है। अब आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग समझ आई। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको कनेक्टर्स यूज़ करने हैं। कनेक्टर्स का मतलब ये है कि मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन टू दिस, लाइक वो आप नेट से निकाल लो, मैंने आपको पहले भी भेजे हुए थे। वो वोकैबलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वोकैबलरी मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। मेटाफर्स बहुत कम यूज़ होने चाहिए। मेटाफर्स का मतलब ये बहुत बड़ा चढ़ाकर इतना नहीं बताना हमें, बहुत मतलब एक न्यूट्रल फॉर्मल, एक फॉर्मल कॉम्पोजिशन लिखनी है ना, हमें इनफॉर्मल तो नहीं लिखनी, हमें एक न्यूट्रल वे में लिखना है, ना ज़्यादा नेगेटिव करना है ना ज़्यादा पॉजिटिव करना है, एक न्यूट्रल वे में लिखना है हमें। सो एक मेटाफर्स भी बहुत कम यूज़ होने चाहिए। सो दीज आर द लिंकिंग वर्ड्स और द ऑल्टरनेटिव वर्ड्स दैट यू कैन यूज़ इन द कॉम्पोजिशन पार्ट। सो इंट्रोडक्शन में आप कैसे इंट्रोडक्शन आप अगर मैं इसका लिखता, सो इंट्रोडक्शन में ऐसे स्टार्ट करता कि आई स्टिल रिग्रेट, मैं क्वेश्चन का डालता और मैं एक्सक्लेमेटरी लगाता और मैं आगे से अपनी बात को कंटिन्यू करता है, ताकि एग्जामिनर समझ पाता कि हाँ यार इसको वाकई इस चीज़ का एक रिग्रेट है, तो वो आगे पढ़ने में इंटरेस्ट रखेगा। मेन बॉडी में उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, जो आपने डिटेल्स हाईलाइट की थी ब्रेनस्टॉर्मिंग में, आप इन्हीं से मदद लोगे, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते अपनी। नंबर थर्ड, आपके कंक्लूजन कि आप अब क्या चाहते हो कि ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, और आप लोगों को क्या एडवाइस करना चाहोगे, तो वो सब डिटेल्स में आपका एक्शन भी आ गया, आपका वेज भी आ गया और आपका डिटेल्स भी आ गई। कंक्लूजन में आप जो अपना एक लोगों को एक उसका लेसन दोगे वो क्या होगा, दैट इज़ इन द कंक्लूजन पार्ट। सो अब आपका होमवर्क ये है, मैंने आपको इतना अच्छा समझाया है ये पार्ट कि आपको अब इसके ऊपर ग्रिप हो जानी चाहिए। कनेक्टर्स नेट से निकालो, वोकैबलरी नेट से निकालो, खुद सर्च करो इस चीज़ के बारे में। अब आपको क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी में से किसी एक पर कॉम्पोजिशन लिखनी है, और वो फिर आपको मुझे सेंड करनी है, एंड आई विल चेक दैट एंड देन आई विल लेट यू नो दैट हाउ मच मार्क्स यू हैव गेन इन दिस पार्ट। ओके, सो ये आप मुझे होमवर्क करके भेजोगे। क्वेश्चन ए मैंने बता दिया है, आप अगर चाहो, चलो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और रिलीव दे देता हूँ, आप ए पर भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस, बट आई रिकमेंड दैट बी और सी पर लिखो, क्योंकि ए मैंने बता दिया है, बी और सी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यू कैन एनालाइज इट बाय योर ओन सेल्फ।